اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد۔ یہ حج کے سلسلے کی دوسری ویڈیو تیار کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ پہلی ویڈیو میں نے حج کے لیے نکلتے وقت جو عمرہ کیا جاتا ہے اور حج تمتع کے ساتھ جسے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے، عمرے کی تکمیل تک اس کی تفصیلات بیان کی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر میں حج جو 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر حج مکمل ہونے تک اہم ترین چیزوں کی کسی حد تک اختصار سے وضاحت کرنا چاہوں گا۔ جب ہم عمرے کے لیے نکلے تھے تو میقات سے پہلے ہی احرام باندھنا ضروری تھا۔ 8 تاریخ کو جب حاجی حج کے لیے مینا نکلیں گے تو ایک مرتبہ پھر انہیں احرام میں آنا ہے، اسی طرح کا احرام جس طرح کا احرام عمرے کے وقت باندھا تھا۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت عمرے کے وقت ہم نے نیت کی تھی لبیک عمرتن، اب حج کے ساتھ ہمیں لبیک حجن کی نیت کرنی ہے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے۔ اس وقت احرام باندھنے کے لیے حاجی جہاں ہیں، اگر وہ میقات کے باہر سے آ رہے ہیں تو وہاں سے احرام باندھیں گے، اگر میقات اور حدود حرم کے درمیان سے ہیں تو وہاں احرام باندھیں گے، اور اگر حاجی پہلے ہی مکے پہنچ چکے ہیں، مکے سے مینا کے لیے نکل رہے ہیں، تو اپنی رہائش گاہ سے احرام کے کپڑے پہن کر احرام کے لیے نیت کر لیں گے، اور یہیں سے ان کے حج کا عمل شروع ہو جائے گا۔ حج کا عمل شروع کرنے کے لیے 8 تاریخ کو ہم کو اور آپ کو مینا پہنچنا ہے۔ مینا پہ ظہر سے پہلے پہنچنا 8 تاریخ کو مسنون ہے، لیکن عام طور پر انتظامی ضرورتوں کی بنیاد پر حج کے ذمہ داران، خاص طور پر معلمین حضرات، 8 تاریخ سے پہلے کی شب کو ہی یا صبح کسی وقت بھی ہم کو مینا چلنے کے لیے بسیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمیں ظہر سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، کچھ پہلے پہنچ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہاں پہنچ کر 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی صبح کی فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ان جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیں قصر کی تھی، لہذا کوئی مسافر ہو یا مسافر نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہاں پر قصر کر کے، یعنی کہ ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں 4 کے بجائے 2 رکعت ادا کی جائیں گی۔ 8 تاریخ کا دن مینا میں گزارنے کے بعد 9 تاریخ کی فجر بھی وہیں پڑھنا مسنون ہے، لیکن 9 تاریخ کو عرفات جانا ہے۔ عرفات میں ظہر سے پہلے عام طور پر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس وجہ سے کبھی کبھی ضرورت کے پیش نظر فجر سے پہلے بھی معلمین حضرات ہمیں مینا سے عرفات کے لیے نکال سکتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ حج کا اصل عمل یوم عرفہ ہے، اور وہاں وقت پر پہنچ کر مغرب تک وہاں پہ رہنا یہ اہم ترین عبادت ہے، لہذا وہاں پر وقت سے پہنچ کر وقت تک رہنے کی طرف توجہ دی جائے۔ عرفات کے اندر سب سے اہم عمل ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی قصر یعنی 2 رکعت پڑھ لینا ہے، تاکہ پھر اس نماز کے بعد سے مغرب تک خوب زیادہ دعائیں کی جا سکے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعائیں سب سے زیادہ قبول فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، لہذا جتنی زیادہ ہماری توجہ ذکر اور دعاؤں اور تلاوت پر رہے اتنا اچھا ہے۔ کچھ وقت کھڑے ہو کر بھی دعا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعمیل میں بہتر ہے، اور یہاں پر ایک دعا جو اس دن کے لیے سب سے بہتر دعا قرار دی گئی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। यहाँ पर मगरिब तक तमाम लोगों को रुकना है और मगरिब के बाद ही वहाँ से निकलना है। अगर कोई मगरिब से पहले वहाँ से निकल जाए तो उसका हज मुतासिर होगा। लिहाजा किसी हाल में भी अरफात के मैदान से मगरिब से पहले नहीं निकलना है। मगरिब का वक्त हो जाए, अजान हो जाएगी, उसके बाद मगरिब की नमाज वहाँ पढ़े बगैर मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होना है और मुज़दलिफ़ा पहुँचकर वहाँ मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा की जाएगी। रात मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे और उसके बाद सुबह फजर के बाद मुज़दलिफ़ा से 10 तारीख को मिना के लिए रवाना होना है, जिसे सबसे अहम तरीन दिन इस एतबार से कहा जाता है कि उसमें कई अमल करने हैं। यहाँ पर यह चीज़ मद्देनज़र रहे कि अगर कोई ज़ईफ़ है, बीमार है या ख़वातीन है या इंतज़ामी ज़रूरतें हैं तो फजर से पहले भी निकलने की शरीयत में इजाज़त है और अहादीस में इसकी सराहत की गई है कि कमज़ोरों और ख़वातीन को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात के बाद निकलने की इजाज़त दी थी। 10 तारीख को जब हम मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना जाएंगे तो आज यहाँ पर कई एक ऐसे अमल हैं जो हज से मुताल्लिक़ हैं। ये यौमुन नहर कहलाता है। इसमें सबसे पहले मिना पहुँचकर जमरे अक़बा, जो आखिरी और सबसे बड़ा शैतान के नाम से अवामी तौर पर जाना जाता है, उसको 7 कंकड़ियाँ मारनी है। कंकड़ी से फारिग होने के बाद उसके बाद अब कुर्बानी कराई जाती है। कुर्बानी करने के बाद फिर बाल मुड़ाए जाते हैं और फिर अगर मौका मिले तो उसी दिन या 11 और 12 तक तवाफ और सई भी करना होता है। लिहाजा हमें इस जानिब तवज्जो देनी होगी कि हम अपने औकात को शेड्यूल के हिसाब से सही अंदाज में अदा करें। इस दिन कई अमल हैं, रमी करना, कुर्बानी करना, बाल का मुड़ाना, तवाफ और सही करना, लेकिन इसमें तरतीब का लिहाज रखना बेहतर है। लेकिन अगर किसी वजह से तरतीब का लिहाज नहीं रखा जा सके तो अहादीस में मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने भी सवाल किया कि मैंने ये काम पहले कर लिया, ये काम करने में ताख़ीर हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कोई हरज नहीं। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सामने आने के बाद हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इस सिलसिले में गैर ज़रूरी तौर पर दम वगैरह के फतवों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जहाँ तक तवाफ़ और सई का मामला है तो तवाफ़ और सई उस दिन भी कर सकते हैं और उसके बाद के दिनों में भी कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आज जब हम रमी करेंगे उस वक्त तक तलबिया पढ़ते रहेंगे। जब हमने हज का एहराम 8 तारीख को बांधा था उस वक्त से 10 तारीख के रमी से पहले पहले तलबिया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन रमी करने के बाद तलबिया पढ़ने का वक्त ख़त्म हो गया। अब हम दीगर दुआएं या अज़कार करते रहेंगे, हमें अब तलबिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जब हमने 10 तारीख को रमी और दीगर आमाल मुकम्मल कर लिए तो यहाँ पर कई आमाल थे, लेकिन अगर कोई भी 2 अमल रमी, कुर्बानी, बाल मुडाना, तवाफ और सही में से 2 अमल हो जाए तो अब एहराम के कपड़े उतार कर आम कपड़ों में आया जा सकता है। लिहाजा अगर कोई शख्स बाद में तवाफ करता है और उसे एहराम के कपड़ों में दिक्कत होती है तो वो एहराम के कपड़े उतार कर आम कपड़ों में जाकर तवाफ और सही कर सकते हैं। तवाफ चाहे उम्रे का हो चाहे हज का हो, उसके लिए वुजू ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ जहन में रहे कि सही के लिए वुजू ज़रूरी नहीं है। अगर वुजू नहीं है तब भी सही कर सकते हैं। सही के दरमियान वुजू टूट जाए तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 10 तारीख के बाद अब 11 तारीख को और 12 तारीख को हमें मिना में रात गुजारनी है और अगले दिन जवाल यानी ज़ोहर के वक्त के बाद से तीनों जमरात, जिसे आम जबान में शैतान के नाम से लोग याद करते हैं, उन तीनों को 7-7 कंकड़ी मारनी है। पहले जमरे को मारने के बाद फिर बाईं जानिब खड़े होकर के किबला रू होकर के दुआ करना मसनून है। दूसरे के बाद भी दुआ करना मसनून है। लिहाजा पहले और दूसरे के बाद दूसरे और तीसरे दिन हम
साथ साथ कंकड़ी मारने के बाद बाईं जानिब होकर के दुआ करें तो एक सुन्नत पर अमल हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि आखिरी जमरे को मारने के बाद दुआ नहीं करनी है। और इस तरह 11 और 12 को जब हम कंकड़ी मार लें तो अगर 12 को मगरिब से पहले पहले हम कंकड़ी मारकर मिना से निकल गए हैं तो अब हमारे हज के दिनों के आमाल मुकम्मल हो गए। अब हमारे ज़िम्मे लौटने से पहले तवाफ़ वदा करना वाजिब रह गया, वरना बकिया तमाम आमाल मुकम्मल हो गए। लेकिन अगर मिना से निकलने में 12 तारीख को ताख़ीर हो गई और हम मगरिब तक नहीं निकल पाए तो 13 तारीख को ज़ोहर के बाद रमी करके अब निकलने की इजाज़त होगी। उसके बाद मक्के मुकर्रमा में हम जब तक रहें वहाँ पे तवाफ़, नमाजों की पाबंदी, तिलावत, अपने हज की हिफाजत कि कोई भी हमसे गलती ना होने पाए, इसका लिहाज करना चाहिए। तवाफ में या किसी भी मौके पर हजर अस्वद का बोसा लेना एक मसनून अमल है। लेकिन मौजूदा सिचुएशन में जो भीड़ होती है जिसमें हजर अस्वद के लिए आमतौर पर धक्का मुक्की, एक दूसरे को दूर करना, आगे करना, ख़ास तौर पर ख़वातीन का उस भीड़ में शामिल होना किसी तरह से मुनासिब नहीं लगता। लिहाजा उस धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ में अगर आप जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि हम भी इस अमल यानी धक्का मुक्की के शिकार हो सकते हैं तो जाने से बेहतर ना जाना, खासतौर पर ख़वातीन का उससे दूर रहना, ये ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख्याल से ये वो चीज़ है जिसकी जानिब सबको तवज्जो देनी होगी। और इसी तरह असल अमल तवाफ़ वदा के सिलसिले में ये है कि आखिरी वक्त में किया जाए। लेकिन अगर कोई ज़ईफ़ है, बीमार है या किसी वजह से उसे यह खतरा है कि पता नहीं हम आखिरी वक्त तवाफ़ वदा कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, तो वो किसी भी वक्त आखिरी तवाफ़ की नीयत कर सकता है। और अगर उसके बाद दोबारा उसे तवाफ़ का मौका मिले तो दोबारा तवाफ़ करके उसमें आखिरी तवाफ़ की नीयत कर लेगा और उसका अमल दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके तमाम आमाल को कबूल फरमाए। और ख़ास तौर पर तवाफ़ वदा में हम ये भी दुआ करें कि अगर हज में कोई कमी रह गई है तो अल्लाह ताला उसकी तलाफ़ी फरमाए और हमारे हज को वो हज मबरूर बनाए जिसका बदला जन्नत, या जिसके बाद बंदा इस तौर पर अपने घर वापस आता है गोया उसके तमाम गुनाह एक नौमौलूद बच्चे की तरह धुल गए हैं तमाम लोगों के हज पने। और इस तरह से हमको और आपको ये दुआ भी करनी चाहिए कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला अमन व आफियत, सुकून, इत्मीनान का माहौल पैदा फरमाए। हम और आप चूँकि हिंदुस्तान से हैं, हमारी दुआ ये भी होनी चाहिए कि हमारे मुल्क को अल्लाह ताला खुशहाली और तरक्की अता फरमाए, अमन व अमान, अदल व इंसाफ, हर एक के साथ प्यार व मोहब्बत और हर एक को जुल्म व ज़्यादती से बचाने की मिलकर तमाम लोग कोशिश करें। और मुल्क के आफियत के लिए भी तमाम लोगों की आफियत के साथ दुआ करें। अल्लाह ताला इस हज को कबूल फरमाए और आप तमाम हाजी हज़रात को मुबारक फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।